morning children. So beta today we are going to attempt the last problem from the sheet which appeared in board examination of 2018, and in the sheet children it is given as question number 16. So now look at the problem. What is told that in this problem children, two matrices are given like A and B, and we have to find out whether they are identical or not. Okay, means what is told, two matrices are said to be equal if they have the same dimensions and their corresponding elements are equal. यानी जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनकी सारी वैल्यूज बेटा सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम प्लेस पे, और वैल्यू भी सेम हो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बोला है, डिजाइन अ क्लास एक्वीमेट टू चेक इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट, एज्यूम दैट द ट्रू मैट्रिसेस हैव द सेम डायमेंशन। तो बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज्यूम दैट the two matrices have the same dimension. Some of the members of the class are given below, and after that the name of the class is given. Okay, then the array is given A, M and N. These are the two variables to store the number of rows and column, and after that four methods are there. Equimat, which is the constructor of the class, then read array to input the element of the array, and then integer check equimat p and equimat q, which checks the parameterized object p and q are equal or not and returns 1 if true, otherwise returns 0। ठीक है, तो ये बेटा मेन मेथड है which accepts two object of the class equimat, and after that it returns 1 or 0 after checking whether both the matrices are same or not, and then the last method is given void print which displays the array element। okay children, तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे प्रॉब्लम में दी गई हैं, and now we look at the answer. So children, in the answer you know that the first part is very easy. The class equimat is there. After that three data members are declared, integer a array comma m and n. Then the constructor of the class appears equimat, which accepts two parameter, integer mm and integer nn. Okay, and these two parameter store their value into the data members m and n। यानी हमें बेटा अपने मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम मिल जाते हैं, और जब ये आपको मिल गए एम और एन, तो अब आप अपने मैट्रिक्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं ए इक्वल टू न्यू इंटीजर एम एन। और वही चीज़ जो मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ कि अब यहाँ पे आप जब क्लासेस ऑब्जेक्ट में जब प्रोग्रामिंग करोगे एंड द मैट्रिक्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एट द टॉप, तो अब आप यहाँ जब मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, देन देयर इज़ नो नीड टू प्लेस द square brackets. Okay, you will simply write a equal to new int mn. Okay, after that children move to the next method, that is void read array। बहुत ही easy है, आपको पता है। रो एंड कॉलम के लूप चलाइए m और n तक, और इसके बाद यूज़र से ARC यानी मैट्रिक्स में सारी वैल्यूज़ की एंट्री ले लेंगे, और फिर नेक्स्ट मेथड है void display which prints the matrix। ओके, तो इतना पोर्शन बेटा बहुत इजी है, और मैंने आपसे बार बार कहा है कि हमें कंप्लीट प्रोग्राम आए चाहे ना आए, सपोज 10 मार्क्स का प्रोग्राम होता है, पर अगर आप इतना पोर्शन भी अगर अच्छे से लिख के आते हो अपने एग्जाम में, आफ्टर दैट ऑल्सो यू विल गेट एटलीस्ट 5 to 6 मार्क, है ना। तो ये जो पोर्शन है अभी, यही सब आपका अगर 2 मार्क्स करके हम कैलकुलेट कर लें तो आपके 5-6 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो और ये बहुत ही ईजी है, ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं क्लास 10 से, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बेटा फिर हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला मेथड है मेरा INT चेक विच एक्सेप्ट द टू पैरामीटर ऑफ द क्लास एक्वीमेट P and Q, and then it checks whether values are same or not. How the function will work, we will show it very soon. After that next move to the main method। यहाँ पे बेटा मेन जॉब है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्वीमेट P इक्वल टू न्यू एक्वीमेट 3/3। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P के नाम से, ठीक है ना। तो ये देखिए एक P के नाम से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, और P के पास क्या होगा बेटा, एक मैट्रिक्स होगा 3/3 साइज का, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया 3/3 का, और इसका नाम है P, और P का जो मैट्रिक्स है उसका बेटा क्या नाम होगा, A होगा, आपको पता ही है, ठीक है। बाकी इसकी जो डायमेंशंस हैं वो आप जानते ही हो। इसके बाद एक्वीमेट Q इक्वल टू न्यू एक्वीमेट 3/3, तो एक Q के नाम से भी एक यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट होगा, ठीक, और यहाँ इसका नाम होगा Q, ठीक है, और Q के पास भी ये एक मैट्रिक्स है, और क्या नाम है बेटा मैट्रिक्स का, A, ठीक है। और ऐसे ही मैंने एक्वीमेट R इक्वल टू न्यू एक्वीमेट, ठीक है, एक R नाम से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, और R की भी जो डायमेंशन है वही 3/3 ले ली, ठीक है। तो ऐसे बेटा मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए P, Q एंड R।
इसके बाद अगली लाइन देखिए क्या है, पी डॉट रीड एरे। तो आपको पता है कि वही जो फर्स्ट मेथड जो फर्स्ट शीट पे था, ठीक है, ये रीड एरे वाला मेथड कॉल होगा पी की बॉडी में, और पी का एम और एन जो कि 3 है, तो 0 से 2 एंड 0 से 2 दोनों लूप चलेंगे, और ये पी में सारे एलिमेंट्स की एंट्री ले लेंगे, 0 0 0 1 0 2 लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज इनपुट कर दी। ठीक, और फिर इसके बाद अगली लाइन जो यहाँ पे दी है दैट इज क्यू डॉट रीड एरे। तो क्यू के लिए वही रीड एरे वाला मेथड चलेगा, और फिर से हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज इनपुट कर दी। ठीक है, तो इतना बेटा जॉब हमारा हो गया। हमने पी डॉट एरे और क्यू डॉट रीड एरे दोनों में यूज़र से इनपुट ले लिया। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, पी डॉट डिस्प्ले एंड क्यू डॉट डिस्प्ले। तो ये दोनों मेथड क्या करेंगे, आपको पता ही है कि फर्स्ट वाला आपका जो मैट्रिक्स है दैट विल गेट प्रिंटेड, और क्यू का जो मैट्रिक्स है ये वो भी आपका मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा अब आया सबसे इंपॉर्टेंट जॉब, नाउ वी हैव टू चेक वेदर बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट। और इस काम के लिए जो मेथड दिया गया है हमको वो कौन सा दिया गया है यहाँ पे, आई एन टी चेक। बेटा खास बात देखिए, ये जो मेथड है ना ये कोई रिजल्ट नहीं प्रिंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। आप यहाँ चेक कर सकते हो ना, बिफोर द नेम ऑफ द मेथड द रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड एज आई एन टी, वॉइड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, आई एन टी लिखा हुआ है। तो वाट इट मीन्स कि बेटा ये जो मेथड है आपका ये चेक करेगा और आपको कोई 0 या 1 में रिजल्ट वापस कर देगा। तो अब इक्वल है कि नहीं ये कहाँ प्रिंट करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आप फंक्शन कॉल करोगे। फंक्शन कहाँ कॉल कर रहा हूँ मैं, मेन में। सही है ना, तो यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है कि वेदर बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट, दैट मैसेज शुड बी प्रिंटेड विद इन द मेन ओनली। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखी है बस सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे प्रोग्राम में, दैट इज आर डॉट चेक पी एंड क्यू। अब देखिए मुझे दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने अपने जो थर्ड ऑब्जेक्ट था आर, इसको मैंने बना लिया करंट ऑब्जेक्ट, और पी को और क्यू को दोनों को मैंने इसकी बॉडी के अंदर पास कर दिया। यानी ये जो चेक वाला जो मेथड है ये कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है इस समय, फाइनल ऑब्जेक्ट जो थर्ड ऑब्जेक्ट है आर, इसकी बॉडी में चल रहा है। तो आर मेरा इस समय करंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने इसमें पी को और क्यू को, तो ये देखिए ये पी का मैट्रिक्स है और ये क्यू का मैट्रिक्स है। मुझे अब इन दोनों मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, अच्छा यहीं पे मैं एक चीज़ आपको और ध्यान दिलाऊंगा, अगर आपने प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ी हो, ठीक है, तो ये देखिए प्रॉब्लम में बिगिनिंग में क्या बोला गया था, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है ना, यानी कि वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए, साथ में उनकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। बट अगले ही पार्ट में प्रोग्राम में देखिए क्या बोला गया था कि एज्यूम दैट द टू मैट्रिसेस हैव द सेम डायमेंशंस। ठीक है ना, यानी कि आगे प्रोग्राम में ये भी बोल दिया है कि आप ये मान के चलिए कि दोनों के डायमेंशन सेम है, और देखिए मैंने यहाँ सेम दिए भी हैं, 3,3 एंड 3,3। तो अब आप एक चीज़ समझ लो कि यहाँ ये जो फंक्शन है इसमें बेटा आपको इनकी डायमेंशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर ऑफ रोज आर सेम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम और नॉट। आपका अगर मन है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ना, बट द थिंग इज दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दैट। why, because in the question itself it is told that there is no need for that, and we are assuming that they are having the same number of rows and columns, so we have to only look for the values कि whether they are same or not। ठीक है, तो क्या यहाँ हम लोग ये काम कैसे करेंगे, तो देखिए जीरो से लेके लेस देन एम और जीरो से लेके लेस देन एन तक मैंने एक लूप चला दिया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सबकी मैंने सेम ले रखी है डायमेंशन। तो ये एम और एन किसके होंगे, आर के होंगे, यानी कि जीरो से लेस देन 3 और जीरो से लेके लेस देन 3। और अब देखिए इसके लिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक फ्लैग वेरिएबल यूज़ किया है एफ। एफ की वैल्यू मैंने कितनी रखी हुई है 1। और अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, पी डॉट ए, यानी पी का जो एरे है इसका 0 0 और क्यू डॉट ए डॉट 0 0 दोनों की वैल्यू बेटा यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर ये वैल्यूज़ अगर सेम हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सेम नहीं है तो हम अपने फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ऐसे 0 0 0 1 0 1, ठीक है, और फिर 0 2 0 2, इनको चेक करिए सबको कि ये सब सेम है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 1 1 1 एंड
1 2 एंड 1 2 इनको चेक करेंगे। फिर हम लोग 2 0 2 1 एंड 2 2 2 0 2 1 एंड 2 2 इनको आपस में चेक करेंगे। तो बेटा टोटल कितनी वैल्यूज़ है 9। यहाँ की 9 वैल्यूज़ यहाँ की 9 वैल्यू से कंपेयर होंगी क्यू के एरे से। और अगर कोई भी वैल्यू मिसमैच होगी तो हम क्या करेंगे, अपना फ्लैग चेंज कर देंगे। तो ये देखिए बेटा हमने पूरा पूरा लूप चला दिया रो एंड कॉलम का। और ये देखिए मैंने क्या लिखा, इफ पी डॉट ए आर सी इज नॉट इक्वल टू क्यू डॉट ए आर सी। तो आपको पता है कि पूरे मैट्रिक्स पे लूप चल रहा है 0 0 0 1 0 2 लाइक दिस। तो P के 0 0 0 1 0 2 Q के 0 0 0 0 1 0 2 से यहाँ पे कंपेयर होंगे। कोई भी वैल्यू अगर मिसमैच हुई तो F की वैल्यू 0 हो जाएगी। पर अच्छी बात यह कि आप देखो तो मेरी सारी वैल्यूज मैच हो रही हैं, यानी कि पूरी 9 टाइम लूप चलेगा C का, पर एक बार भी ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, और ये आपका पूरा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये सब आपके यहाँ पे लूप चल रहे हैं। ठीक है, और ये पूरे जब हम लूप से बेटा बाहर आएंगे और हमने देखिए लास्ट में सबसे क्या बोला, रिटर्न एफ। ठीक है, तो आपको पता है कि सारे लूप चलने के बाद भी वैल्यू कितनी है एफ की, मेरी 1 ही मेंटेन है। अगर बेटा कोई वैल्यू मिसमैच होती तो एफ की वैल्यू 0 हो जाती। तो अब जब ये एफ जब वापिस जाएगा मेन में, तो आपको अच्छे से पता है कि या तो अपने साथ 0 लेके जाएगा या 1 लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो सिचुएशन मेरे सामने है इसमें क्या होने वाला है कि जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी एफ के थ्रू दैट विल बी 1, है ना। तो ये 1 यहाँ लेके आएगा और वही 1 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। और अभी अब टाइम आ गया किस चीज़ का, टू प्रिंट द फाइनल रिजल्ट। अब आपने ये जो फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की है ए में, अगर 0 रिटर्न की है तो क्या बोल देंगे, नॉट इक्वल। और अगर जो है ए की वैल्यू 1 है तो क्या बोल देंगे, बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो आप यहाँ चेक कर लो, मैंने यहाँ पे चेक किया क्या ए की वैल्यू 1 है, यस। तो क्या लिख के आ जाएगा, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है ना। और इसके आगे आप जानते ही हो कि अगर 0 होता तो क्या आता, नॉट इक्वल। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही वाली प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर ली। ठीक है, ये हमारी लास्ट बोर्ड की प्रॉब्लम थी। तो यहीं पे बेटा आपका ये जो टॉपिक है दैट वाज वर्किंग विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट ऑब्जेक्ट पासिंग, इज ओवर नाउ। ठीक, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से बेटा रिकर्सन पे थोड़ा काम शुरू करेंगे। थोड़ा सा आपने पढ़ा है क्लास 11th में, ओके, बट नाउ वी विल गो टू द मेन स्ट्रीम प्रोग्रामिंग। ठीक है, कि क्लास 12th में कैसे इस पे प्रॉब्लम आती है, 10 मार्क्स की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और ये सेक्शन बी में अपीयर होगी। तो कैसे हमें रिकर्सन करना है ये हम लोग चेक करते हैं। ओके, बाय।